وہ اسی کے سحر میں تھی، وہ جو اسے لاجواب کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ ارے مراد آؤ نا بیٹا، جب صدف نے اسے اسٹیج پر بلایا تھا۔ کیسی ہیں آنٹی؟ مسکراتے کہا۔ میں بالکل ٹھیک، کنگریچولیشن۔ وانیا اینڈ تہا مسکراتے دونوں کو مبارکباد دی۔ تھینک یو بھائی، ویسے آپ تو عید کا چاند ہی ہو گے، وہ نظر ہی نہیں آئے۔ جبکہ مریم کو پھر سے اپنا آپ ماحول میں مکس فٹ لگا تھا۔ بیٹا آپ کون ہو؟ صدف نے ہی اس بیچاری سے پوچھا۔ وجدان نہیں تھا وہاں اور لمز وانیہ کے ساتھ سیلفی لے رہی تھی۔ آنٹی یہ میری وجدان کی بہت اچھی فرینڈ ہے، تعارف تو اس کا کچھ کرانا تھا پر اپنی موت اپنے ہاتھوں نہیں لانی تھی۔ مریم کا دل چاہا سر پھاڑ دے۔ لمز کا ہاتھ پل بھر کے لیے رکا پر وجدان کی بات یاد کرتے لب مسکرائے اور وہ اسے اگنور کرتے پکچر کیپچر کرنے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم آنٹی، زبردستی کی مسکراہٹ لاتے کہا۔ وعلیکم السلام، بہت پیاری لگ رہی ہو آپ بیٹا، صدف نے اپنی طبیعت کے مطابق پیار سے پوچھا۔ آپ کے آنے سے خوشی ہوئی، آؤ جوائن کرو ہمیں، خوش دلی سے کہا، جبکہ مراد وجدان کی فون کال سے وہاں سے جا چکا تھا۔ اب اسے اکیلے اور ہی عجیب فیل ہو رہا تھا۔ کنگریچولیشن اینڈ سوری میں کوئی گفٹ نہیں لا پائی، شرمندگی سے وانیہ سے کہا۔ اٹس اوکے، آپ آئی ہیں یہی کافی ہے، وانیہ نے مسکراتے اس کی مشکل حل کی تھی۔ ایکسکیوز می، جھجکتے سب کی تصویر کی توجہ پرے ہوتے اسے مخاطب کیا۔ جی؟ لمز نے ماتھے پر تیوری چڑھائی۔ آئی ایم سوری سویٹ گرل، مجھے نہیں پتا تھا وہ بدتمیز انسان میرا مطلب وجدان تمہارا شوہر ہے، سو اس دن کے مس بیہیو کے لیے سوری۔ وہ شرمندہ سی تھی۔ اٹس اوکے، پر آپ نے بدتمیز کس خوشی میں بولا اسے؟ بلکہ اچھا نہیں لگا تھا، اگر وجدان یہاں ہوتا تو ضرور شوک ہو جاتا۔ جبکہ وہ اس کی بات پر خجل سی ہوئی لیکن جلد ہی مسکرائی تھی۔ ہینڈل کر لیتی ہو اسے؟ اس کی بات پر وہ لمحے میں سر تپاؤں سرخ ہوئی تھی۔ جی؟ وہ بات کی نوعیت سمجھ نہیں پائی۔ اس کے چہرے پر اس کے ذرا سے ذکر سے بکھری کوسے قضا کے رنگ دیکھ کر وہ خاصی چونکی تھی جو گلابی سے سرخ ہو چکی تھی۔ بے ساختہ اسے لڑکی ہو کر اس پر پیار آیا تھا۔ میرا مطلب تھا کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا تم اتنی پیاری انوسینٹ سی چھوٹی سی ہو۔ اور اسے دیکھو، اسٹیج سے دور اسے مراد سے کچھ ڈسکس کرتے دیکھا۔ بالکل کوئی سڑیل سا بدتمیز روڈ شخص لگتا نہیں، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے۔ پیاری، برا نہیں منانا۔ اس کے چہرے کے نقوش دیکھے جو اب بگڑ رہے تھے۔ وہ اس کی برائیاں کر کے برا نہ منانے کو کہہ رہی تھی جو اسے کسی طور پر قبول نہیں ہوئی۔ ڈونٹ جج دا بک بائی اٹس ٹائٹل اور کور، ناؤ پلیز ایکسکیوز۔ اس لائن میں وہ اس سے بہت کچھ باور کرا چکی تھی لیکن پھر بھی اس نے کندھے اچکانے پر اکتفا کیا کیونکہ اپنے آپ کو وہ کبھی بھی غلط نہیں مانتی تھی۔ کسی کی نظریں آج بھی محسوس ہوئیں، وہ قدرے سائڈ پر تھی، بے ساختہ ڈر کر ارد گرد دیکھا تھا مگر لوگوں کے ہجوم میں وہ پھر اندازہ نہیں کر پائی۔ دوپٹہ سنبھالتے وہ ان تک پہنچی۔ غلطی سے میں تمہارے ساتھ آئی ہوں، اگر تمہیں فرصت مل جائے تو مجھے چھوڑاؤ، پھر اپنی فضول گفتگو جاری رکھ لینا۔ دونوں کو دیکھتے کہا۔ ابھی مراد نے منہ بنایا۔ واٹ یو مین، ابھی 11 بجنے والے ہیں، لہٰذا چلو۔ وہ الجھن کا شکار تھی۔ وجدان چپ ہی تھا اور نظر لمز پر ٹھہری جو ایک سائڈ پر تنہا کھڑی کچھ سوچ رہی تھی۔ اوکے وجدان، اجازت، مراد نے اسے ملتے کہا، باقی کل وہاں تیرے فلیٹ میں ڈسکس کر لیں گے۔ چل ٹھیک ہے، اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، مجھے لگ رہا ہے تجھے گنجا کر دے گی، وجدان نے کان کے قریب مسکراتے کہا۔ مریم خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اوکے مس مریم، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ نے ہماری محفل کو آخری گرہن لگایا۔ جاتے جاتے وجدان نے اسے پھر سے تپایا۔ وہ صرف ڈرٹی لک دیتے پیر پٹکتے وہاں واک آؤٹ کر گئی۔ صدف نے لمز کا تعارف کچھ لوگوں سے کرایا تھا اور کھانے کے بعد پھر کچھ دیر فوٹو سیشن کا دور چلا۔ طہا کی فیملی واپس جا چکی تھی۔ احمد، وانیہ اور صدف بھی کچھ دیر پہلے جا چکے تھے جبکہ لمز بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی پر اس کے ہاتھ کے دباؤ سے وہ کراہ کے رہ گئی۔ وہ پھر اس کے قابو میں تھی۔ جانا مم مجھے نیند آ رہی ہے، وجدان نے پوچھا جو فارم ہاؤس کے لاؤنج میں قیمتی صوفے پر بیٹھے فون یوز کرتے اسے تنہائی میں کنفیوز کر رہا تھا۔ کم ہیئر فون رکھتے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کے ہونٹ پر انگلی رکھی۔ خاموش ماحول، مہکتی فضا میں ہلکی سی سردی کا احساس تھا۔
जस्ट फील मी, बस मैं और तुम। इसके सुर्ख और सफेद हाथ की उभरी नीली नसों पर अंगूठा फेरा, इसके गिर्द लिपटी शॉल हटाई। वो फिर से अपनी बेकाबू सीना तोड़ धड़कनों को काबू कर रही थी। इस शख्स का हाथ पकड़ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। कहाँ इसकी इतनी कुर्बत। वो सीधा हुआ था, इसकी नजरों की तपिश से वो झिझकता हाथ की उंगलियां मुसलसल चिढ़ा रही थी। इसका सर्द पड़ता हाथ अपने गर्म हाथ में लेकर इसे पुरसकून किया था। मुझे नींद इसके होठों को कान के करीब महसूस करते बाकी लफ्ज दम तोड़ गए थे। मैंने तो देखा ही नहीं था तुम कैसी लग रही हो, कुछ पल तो उधार दे दो। इसकी सरगोशी से नींद से बेहाल होते भी वो सिमटी थी। वजदान, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। वो इसके कंधे पर सर रखे थी जो इसे काफी पुरसकून कर चुका था। वाई डू यू लव मी? काफी कांपते लहजा था जो इससे महसूस हुआ। तुम नहीं जान पाई? अभी भी इसके बालों को मुसलसल चूमा था। नो, आपने बताया कब? वो हैरान हुई जो इसका हाथ अपनी उंगलियों में उलझा रहा था। बताएं, दोबारा हिम्मत की। बताते हुए अमल भी करूंगा, बर्दाश्त कर लोगी? बाल चेहरे से हटाए। इसके जज्बात से महकते लहजे ने हवाइयां उड़ाई जो गलती से आज खुद इसके करीब तरीन थी। वंडरफुल इज माई ब्रेथ, माई लाइफ, my love, but lumps वजदान शाह, यू आर माई नीड टू कंप्लीट एवरीथिंग। शिद्दत से बोलते ही इसके बालों में हाथ फंसाए करीब करते हुए इसके होठों पर झुका था। यू आर माइन लम्प। वो इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े थी, इसकी जैकेट के कॉलर को 2 दफा खुद से दूर करने को खींचा था जिससे वो रुकने की बजाय मजीद इसमें शदीद शिद्दत अंडेल रहा था। अपनी सांसें इसकी सांसों से उलझाए रखी। कुछ टाइम बाद इसकी हालत देखी जो गैर होती हालत से सांस बहाल कर रही थी। पूरी शर्म से दोहरे होते इसके सीने में मुंह छुपाया था। आइंदा कभी नहीं पूछना, वरना तुम मेरी शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकोगी और मैं काबू नहीं रख सकूंगा। इसके कान की लू पर झुकते कहा था, जबकि वो इस बात पर इसकी शर्ट पर मजीद मजबूती कर चुकी थी। इसकी बेतरतीब धड़कनें खुद वो इसके सीने से लगी सो भी चुकी थी। सोफे से टेक लगाते आंखें मूंदे और खुद को पुरसकून करना चाहा था। दूर किस्मत जरूर मुस्कुराई थी, शायद खुशियों के लम्हे थमने वाले थे। केमिस्ट्री लैब में वो दोनों बंदों को खूनख्वार नजरों से देख रहा था। हिलने की भी कोशिश नहीं करना, गन इनकी कमर पर रखते कहा, जबकि वो दोनों खौफजदा से थे। सर, आप गलत, आप कौन हो? वो तो इसे देखकर तख्ते में थे। ये वीडियो देख रहे हो? इनकी बात बकवास समझकर नजरअंदाज की। फोन इनके सामने रखते वहशियाना तशद्दुद वाली वीडियो चलाई जिसे देखते पसीना माथे से कनपटी तक आया। शायद दोनों इतने पुख्ता मुजरिम नहीं थे। झूठ तो बोलने की कोशिश भी न करना। सच सुनना है मुझे। इनमें से एक के होंठ हिलते देख सर्द लहजे में धमकाया। वो हमें नहीं पता, हमने इस शख्स को आज तक नहीं देखा। बस वो हमें ये सारा माल डिलीवर करने को बोलता और हम यूनी की स्टूडेंट्स को हॉस्टल में वार्डन्स और कुछ गर्ल लड़की मदद से अंजाम देते। हम नहीं जानते वो कौन है। वो बंदे की हिलने की कोशिश भी नाकाम करते जो कुर्सी पर बंधा था। अच्छा, तो तुम नहीं जानते? ग्रेट, बोलते ही हाथ उठाया था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि इसे अपना जबड़ा हिलता महसूस हुआ। होठों से खून रिसना शुरू हो चुका था। तू बता, अब तू जानता है इस बंदे को? दूसरे के बाल खींचे थे जो लैब में बेसूद सा था, जैसे दिन में भी नशा किया हो। यहाँ फायर करके वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। बहुत फर्माबरदार हो, मतलब नहीं मुंह खोलना। ठीक है, अब जो होगा वो H2SO4 करेगा। लैब में नजर आती शीशी पर नजर डालते वो तंजिया मुस्कुराहट से उठा। नहीं प्लीज, वो खौफजदा हुआ था जब वो सल्फ्यूरिक एसिड की शीशी पास लाया था। बताता हूँ, इसे दूर करो। मुझे नाम पता है, बस और कुछ नहीं। बता जल्दी। शीशी का ढक्कन खोला। दूर दूर करो। बताता हूँ। वो खौफजदा होते इसकी हर हरकत और सकनात देख रहा था। ज़ियान लगा रही। वो पाकिस्तान नहीं होता अक्सर। इसका ठिकाना हमें एग्जैक्ट नहीं पता, बस हम इसके लिए गैर कानूनी काम करते। नजरें इस पर मरकूज किए जल्दी से कहा, क्या मलिक रहमान का बंदा है? कुछ सोचते उठते पूछा। नहीं, पता नहीं, पर यहाँ इसकी 2-3 इंडस्ट्रीज हैं। शायद बाकी हमें नहीं पता। प्लीज छोड़ दो अब हमें। छोड़ दो चलो छोड़ देता हूँ। वो हाथ में कुछ लिए पलटा था जिस पर
जिस पर इसरार अंदाज से इसने कहा वो चाह के भी खुश नहीं हो पाए थे और अगले ही लम्हे इनकी चीखें गूंजी थीं। जो एसिड इनके हाथों पर ऐसे फेंक रहा था जैसे डिटोल हैंड वॉश हो। चीखों चीखों का गला मुंह पर टेप लगाकर बुरी तरह घूंटा था। सजा याद रखना, अब दोबारा इन हाथों से तुम गलत काम करने की सोच भी नहीं रखोगे। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। चेहरा थपथपाते वहां लैब में मौजूद टेप खोलते, हाथ धोते, मुंह पर छींटे मारे थे और महारत से वहां से निकलता चला गया। तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ओ बैठते बोली। क्यों, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? बुक साइड पर रखी। मुझे फी पे करनी है आज मेरे साथ एडमिन ऑफिस इज़्ज़ा के पास बैठते कहा। नहीं, तुम चली जाओ, मुझे नहीं जाना। घर भी पढ़ना महाल है, यहाँ भी। वो दोबारा बुक की तरफ मतवज्जो हुई। वैसे लम, तुम अपनी बात तो नहीं मानती हो यार। वो चिढ़ते गुस्से हुई। यार वजदान गुस्सा होते हैं। बोलते ही इसे देखा जो मायनी खद नजरों से देख रही थी। क्या है? वो झंझलाई थी नजरों से। बहुत फर्मा बरदार हो भाई तुम तो शोहर की। हाथों से इशारे किए। हाँ हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम? इन्हें अच्छा नहीं लगता। वो इंग्लिश में मौजूद रिंग से छेड़छाड़ करते बोल रही थी। इन्हें अच्छा नहीं लगता? ओ वाह, क्या कहने मोहतरमा के। वो मजीद रिकॉर्ड लगा रही थी। शट अप और उठो चलें। सुर्ख चेहरा लिए वो मजीद इसकी बातें नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। आज भी किसी की नज़रों के हिसार में थी। लाइब्रेरी से निकलते हुए इससे बातें करती जा रही थी। एक्सक्यूज मी जी। वो मतवज्जो हुई। आपकी शॉल नीचे लग रही है। कहाँ? वो उठाने के लिए पलटी जब वो शख्स खुद उठाने लगा था। डोंट, उंगली उठाते वार्न किया, जबकि वो गुस्से में थी। जो टीचर होने का फायदा उठाते कुछ ज्यादा शोखा हो रहा था। इसकी शाल खुद ठीक करते इसके कान के पास सर्द लहजे में सरगोशी की। मुझे लगता है हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखते रखते तुम मुझे जन मुरीद बना के छोड़ोगी डार्लिंग। जबकि इस सर्द आवाज को तो वो हजारों में पहचान ले, तो क्या वो इसे पहचानने में फिर से गलती पर थी? इसे एक नजर देखा और सदमे में थी। इसका लुक बिल्कुल चेंज था। ग्लासेस के नीचे ब्राउन आंखें, घनी दाढ़ी, बेतरतीब स्याह बाल, इसका नरम लहजा, इसका फिक्र करना, यूनिवर्सिटी 2 मिनट में आना, हर वक्त नजरों का एहसार महसूस होना। हाँ, इसे कैसे पता वो इस दिन ऑफिस में गई थी? सर हैदर, नो। वजदान इसकी पूरी आंखें हैरत से खुल गईं। कहाँ खो गई कहाँ खो गई हो? चलें। ये सर हैदर वाकई छिछोरे टाइप के हैं। लम, तुम्हें कंप्लेन करनी चाहिए। ईजा ने इसका ध्यान बटाया जो न जाने इसके जाने के बाद भी कहाँ खोई थी। कंप्लेन? आज इस बंदे की सजा मैं खुद तय करूंगी। दांत पीसते खुद से एहदोपमा कर रही थी। ये आपके स्टूडेंट्स हैं, जानते भी हैं आप इन्हें। वो सख्त कड़े कड़े तेवर से इस्तफार कर रहा था। सॉरी चेयरमैन और प्रिंसिपल सर झुकाया था। शाह जी के ताल्लुकात हैं हमसे, आप ऐसे बिहेव नहीं करें। और रियली आप मेरे बाप का हवाला मुझे देंगे? वाज़ेह मजाक उड़ाया। आपके वालिद हैं? चेयरमैन शर्मिंदा हुआ। लीव वेट, क्या आप डॉक्यूमेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते? हैरत है मुझे। वैसे सर एडमिन के खिलाफ नोटिस लेंगे जो फॉर्म टेस्ट करते हैं। प्लीज आप इसे रिवील नहीं करें। नेक्स्ट ख्याल करेंगे यूनिवर्सिटी की बदनामी हो सकती है। वो झुके सर बोला था। एक्शन तो होगा एंड बी प्रिपेयर। अपने बंदों में वो ये जहर फैला रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की वार्डनेट भी मिले हैं, जानते भी हैं। नशे पर लगा रहे हैं वो यंग जनरेशन को। और गर्ल्स सबसे ज्यादा एडिक्ट हैं इसकी। ये मामूली बात है आपके लिए। ये लिस्ट एंड बंदों की चेक करें। 15 बंदे इन्वॉल्व हैं। आप इसे मामूली समझ रहे हैं? लिस्ट टेबल पर फेंकी थी। ये सब फायर करें। इनके डॉक्यूमेंट सारे कल तक कलेक्ट करें और मुझे चाहिए। समझे आप? गुस्से से बोलते वो जा चुका था। क्या चीज है ये? इसके जाते सांस बहाल की थी। ये तैयारी क्यों? वो हैरत में डूबी थी। जहां वो अपनी तबीयत की परवाह किए बगैर किचन में कुछ बना रही थी। जल्दी नहा धोकर तरोताजा शक्ल देखूं, कैसी मनहूसों जैसी हुई है। और बाल तुम्हारे जैसे घोंसला हो कोई, चमक ही नहीं। और इन्हें ऐसे छूते बोल रही थी जैसे अछूत हो। गिरहनी, क्या सीन है यार? बताएं मुझे क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अब वो हाथ हटाते बोली। जासूस कब से बन गई तुम?
जो कहा वो करो, तैयार हो और मुंह पर कुछ लगा भी लेना। हमारे ज़माने में तो शक्लों पर इतनी रौनक थी। बस बस ग्रैनी, खेतों में ना पहुँच जाएँ। पता है आपके ज़माने में देसी चीज़ें इस्तेमाल होती थी। भला भला, मुँह बघारते कहा, जो वो हमेशा शुरू कर लेती थी। तुम्हारा रिश्ता देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं मरियम। वैसे शक्ल तो तुम्हारी देखकर मुझे डर है इनकार ही ना कर दें। ग्रैनी ने हंसते कहा। व्हाट? आपने अभी क्या कहा? मुझे देखने आ रहे हैं? ग्रैनी, क्या हो गया है आपको? वो सदमे में थी। तब तक दरवाजा नॉक हुआ। देखा, आ गए वो लोग और तुम अभी तक वही मनहूस बनी हो। जाओ, जाकर चेंज करो और हाँ, शलवार कमीज पहनना, वो माही मुंडा बन के ना आ जाना। जाओ। अब वो जो सदमे में थी, इसे रूम में बाहर बकायदा धकेला। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। बेटा ग्रैनी भी खुश दिली से इन मियाँ बीवी से बोली। आपका कोई और बेटा बेटे नहीं साथ आया? नहीं, दरअसल हमारा एक ही बेटा है और बेटी है। बेटी मैरिड है और अपने मियाँ के साथ बाहर सेटल है। और मेरे बेटे ने बहुत तारीफ की है आपकी बेटी की और इसकी खुशियाँ हमें अजीज हैं। हाँ, वैसे कहाँ है आपकी बेटी? वो मिलने के लिए बेताब थे। जी, मैं बुलाती हूँ मरियम। मरियम, ओ मरियम, बाहर आओ। दरअसल वो शर्मीली है, शर्मा रही होगी। ग्रैनी ने बात संभाली, जो आ ही नहीं रही थी। हालांकि कुछ टाइम पहले इसे अच्छा खासा समझाकर चाय लाने को बोला था। कुछ टाइम बाद वो लवाजमात की ट्रॉली के साथ बाहर आई थी। ग्रैनी तो इसे देख शदीद गुस्से में, जो तेज पीले रंग के जोड़े में, बालों में तेल लगाए परांदा की करके तेज मेकअप के किए देसी स्टाइल में नमूदार हुई थी। बेटा इधर आओ। हाय, इनको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? मरियम ने दाँत पीसे। जी आंटी, जी, झिझकते वो फुल एक्टिंग करते उठी। बहुत प्यारी हो आप बेटा, हमें ऐसी ही सादा घरेलू बहू चाहिए थी, हमें आप पसंद हो। जबकि वो सदमे में थी। जितनी वो मॉडर्न और नफीस थी, वो कमरे की खिड़की से देख चुकी थी और इसीलिए ये गेटअप अपनाया था, जो कम अज़ कम किसी बंदे को इस ज़माने में तो हरगिज़ पसंद नहीं आ सकता था। असद, अंगूठी दें? इतनी जल्दी क्या आंटी जी? वो अपनी जगह से बुरी तरह उछली थी। नहीं नहीं, आप पहना दें, मुझे कोई एतराज नहीं। ग्रैनी ने मुस्कुराते इशारा किया। मुबारक हो बेटा जी, लड़के के बाप ने प्यार दिया था। नो, तो जो भी है कमीने, तेरा जीना हराम करूंगी। मैं ये होने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? उफ खुदाया, ये तेल की स्मेल तो मुझसे बर्दाश्त से बाहर है। ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? वो इनके दरमियान में बैठी सोच रही थी। आंटी जी, मैं अब जाऊं? दुपट्टा मरोड़ते कहा। अरे नहीं बेटा, आप बैठे, अभी कुछ यादगार लम्हे कैद करें। और साथ ही फ्रंट कैमरा खोला था। शाह वजदान कहाँ है? सदफ ने पूछा। वो इन्हें कल से नजर नहीं आया था। मुझे क्या पता, वो अपनी मर्जी का है, अपनी मर्जी का मालिक है। वो बाहर गार्डन में बैठे अखबार की हेडलाइन देख रहे थे। कुछ पा रहे हैं आप दोनों मुझसे? क्या चल रहा है? क्या है ये? अखबार खींचने पर गुस्सा दिखाया। शाह, ये गुस्सा मुझ पर नहीं चलना। इनकी गाल खींची थी। गाड़ी गिराज में रुकी थी। वो बगैर इसे देखे तेजी से निकलती चली गई थी, जबकि वजदान इसका नॉर्मल रवैया देख सोच में पड़ा था। यार कुछ तो लिहाज करें, घर में जवान बेटा है, इसके अरमान जागते हैं आप लोगों को यूं देख के। वजदान की मुस्कुराती आवाज से वो खजल होते परे परे हटी। बाकी बातें छोड़ो, कहाँ थे तुम खुद? पर काबू पाते वो पूछा। वो थका सा लगा था। यही आपके पास दिल में। वो वही चेयर पर बैठ गया। बात बदलो नहीं, तुम कल सुबह से घर से निकले और वापस नहीं आए। प्लीज मॉम, अब तो बच्चों की तरह ट्रीट नहीं किया करें। क्यों डैड? सही कहा ना, इनको भी घसीटा। तुम दोनों का मसला है, मुझे दूर रखो। मॉम, लंच बनाकर दें, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी बीवी नौकर नहीं है तुम्हारी, जाकर अपनी बीवी से कहो वो बना के दे। मेरी बीवी छोटी है अभी, और वैसे भी मुझे मम्मा के हाथ का ही खाना करना है। आप ही बनाएं। वजदान ने जान के तपाया। मैं बना देती हूँ अपने बेटे के लिए। वो खुश दिली से उठी। माँ का लाडला ना हो तो। वो बुड़बुड़ाए, जबकि सदफ एक नजर इन पर डालते चली गई थी। छोड़ दे नाराजगी, बच्चे की जान लेंगे क्या? फजूल नहीं बोला करो, इसे घूरा। फिर नाराजगी खत्म करें। और इनके कदमों में बैठा था। मान जाए वरना मैं नहीं उठूंगा यहाँ से। ना उठो, मुस्कुराहट जब्त की। डैड मुस्कुराए, मतलब मान गए आप? शट अप। अखबार मुंह के आगे किया। नवाजिश। अखबार हटाते वो जोर से गले मिला था। डिनर पर भी नोटिस लिया, वो पुरसकून थी। कॉफी पीते वो इसके तासुरात जान रहा था। मोम, शादी में 5 दिन है, कुछ याद दिलाया था।
हाँ, तो वो हैरान हुई। तो अपनी बहू को ट्रेन करें, अदब व एहतराम सिखाएँ, इसको नज़रों में उतारा ताकि वो कुछ तो बोले, सीख जाएगी वो। मम्मा अपने बेटे से कहें ये भी कुछ सीखें। ड्यूल पर्सनैलिटी बोलते ही वहाँ से उठी थी, जबकि वो इसकी पुश्त से देखता रहा। क्या करूँ? नींद तो कोसों दूर थी, बदला जो लेना था। कुछ यूनिक जो मज़ा दे। आइडिया ड्रेसर का ड्रॉर खोलते कुछ चीज़ें उल्टी-पुल्टी थीं। डियर डार्लिंग हबी आज आपकी सज़ा की बारी। ग्रे आँखों में चमक लिए ग्रे आँखों में चमक लिए वो 12 के करीब हाथ में कुछ स्ट्रैप्स लिए रूम से निकली थी। खामोशी से बगैर चाप के वो सीढ़ियाँ चढ़ते इसके रूम की नोक घुमाई। शुक्र किया रूम का लॉक नहीं था। बिल्कुल अंधेरा था। रूम में सिर्फ एसी की स्क्रीन की नंबर शो करती लाइट से हल्की सी रोशनी थी। आज दोबारा इसे ठोकर लगी थी अंधेरे में। वो बेड की तरफ बढ़ी। शर्ट में है ये तो। वो बदमज़ा हुई। प्लान फेल होते देख कोई नहीं। यू कैन यू कैन लम्ब वजदान खुद को हिम्मत दी। साइड लैंप आराम से ऑन करती एक घुटना फोल्ड किए दूसरा बेड से नीचे ही था। इसी पोजीशन में इसकी तरफ मतवज्जो हुई। जो सोया था माथे पर बिखरे बाल सोते हुए कितने मासूम लगते हैं। बाल माथे से हटाए थे, फिर फौरी हाथ हटाया। इसकी सीने पर धरी बाजू आराम से पकड़ी थी और हाथ में मौजूद वैक्स स्ट्रैप का स्टिकर उतारते चिपका दिया। एक फिर दूसरा फिर तीसरा। वजदान लब भींजे था। इसके करीब आने से वो इसे महसूस कर चुका था। डन। दूसरी बाजू वो बड़ी थी पर वो तो सर के नीचे थी। मुंह बिगाड़ा। चलो यही काफी है। वो खुश हुई कारनामा देखकर और उठने लगी थी। दूसरी पर भी लगाओ। वजदान की आवाज़ से पूरी तरह आँखें खुल चुकी थीं। सेकंड में वो भागना चाहती थी जब वो इसकी कोशिश नाकाम बनाते इसे बेड पर खींच चुका था। तो ये सज़ा थी मेरी। सोचो डार्लिंग अब तुम्हारा क्या होगा? बाजू इसकी कमर पर लपेटते वो इसे सीने से लगा चुका था। मैं तो बस नहीं वजदान ये तो पता नहीं कहाँ से कैसे लगी। आई डोंट नो। वो इसकी गिरफ्त में डरते बोली थी। अगर ये तुमने नहीं लगाई तो आज तुम यही सोओगी मेरी पनाहों में। वो इसका रुख अपनी तरफ करते मुस्कुराहट ज़ब्त कर रहा था। नहीं, मैंने ही लगाई है, जस्ट मज़ाक किया था। वो घबराई थी और फौरी सच बोला, ऐसे मज़ाक नहीं करते, फिर शौहर के साथ अक्सर बहुत भारी पड़ते हैं। वो इस पर अपना लिया हुआ कम्फ़र्टर दे रहा था। शायद एसी की खुनकी में या इसके खौफ में इसका ठंडा हाथ वो महसूस कर चुका था। लम्स का साँस रुक रहा था। वो क्यों आई इस वक़्त इसके रूम में? वो कभी नहीं मुकाबलेबाज़ी में जीत पाई थी। आई एम सॉरी। वो डरते फौरी हार भी मान चुकी थी। नो नो एक्सेप्टेड। यही तो रात तो यही रुकोगी तुम अब मेरे साथ एक ही रूम में मेरे बेड पर और एक ही कंफर्टर में। सोचो लम्स क्या होगा फिर। वजदान उसकी शक्ल देखते मुस्कुराहट जब्त करते मजीद डरा रहा था। वजदान टुकड़ों में इसका नाम पुकारते वो रूहानसी हुई थी। आह! कोई ड्रामेबाज़ी नहीं, इसके ना आने वाले आँसुओं पर चोट की। सो जाओ, कुछ नहीं कहूँगा, पर मेरे साथ ये तुम्हारी सज़ा है मुझसे पंगा लेने की। वो इसे खुद से लगाए सरगोशी में बोला था। लम्ब उठना चाहा था पर वो नाकाम बना चुका था। बेबसी से कोशिशें तक करते इसका हाथ हटाकर करवट ली थी, जब वो फिर से इसे करीब कर चुका था। आप ही हैदर थे, मुझे डराया, सज़ा दी आपने। इसकी गिफ्ट में बताया, तुमने कहा था तुम्हें मेरी नज़रें बुरी लगती हैं, अपनी दोस्त से बुराई की थी मेरी, और वैसे भी कोई भी अगर ऑफ़िस बुलाए तो नहीं जाते। बोलते ही वो इसके चेहरे पर झुका था। मुझे नहीं पता था वो आप हो। इसके होठों पर हाथ रखा, जब इसका हाथ हटाते चूमा था। प्लीज़ प्लीज़ सोना मुझे फौरी इसके सीने पर चेहरा छुपाया था। पर मुझे प्यार करना है तुम्हें, इसकी कमर पर गिरफ्त की थी। मुझे डर लगता है वजदान। क्यों? वो हैरान हुआ। पता नहीं पर लगता कुछ सोचते कहा, मैं नाराज़ हूँ आपसे, मैं मनाऊँ? सरगोशी की। वो इंतज़ार में था पर जवाब
इसकी मौजूदगी में कहाँ नींद आ रही थी। इसे अब रोक कर सबसे बड़ी गलती लग रही थी। कुछ देर बाद ही इसकी सांसें भारी होती वो महसूस कर चुका था। तो मुझे मेरे करीब चाहिए हो लम्ब इसका रुख अपनी तरफ किया था, जो इसका सब्र आजमा रही थी। बेकाबू होते वो झुका था इसके दोनों गालों पर, फिर आंखों पर, शफाफ गर्दन पर। अभी वो मजीद फासला तय करता कि वो फौरी होश में आया था। नहीं, अभी नहीं। शोर करते जज्बात को काबू पाते वो फौरी बेड से उठा था और सोफे की तरफ चला गया था। ओह इट्स हर्टिंग। बाजू पर मौजूद स्ट्रेप हटाते वो कराहा। लम्ब जागती तो जरूर खुश होती। इसकी आंख सुबह लेट खुली थी। मैं यहाँ कैसे? मैं तो वजदान के पूरी तरह बेदार हुई तो हैरान थी खुद को अपने रूम में देखकर। लम्ब तुम पागल हो एक नंबर की। अब इसका सामना कैसे करोगी? वो बाल समेटे खुद पर गुस्सा हुई थी। नाराज तो रहूंगी आपसे, मैं जो इससे मुकाबला करने गई थी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? जले पैर बिल्ली की तरह वो काफी का मग लिए टहलते दांत पीसते बोल रही थी, जो मुकम्मल तौर पर इसे नजरअंदाज किए थी। क्या मुझे हक नहीं तुम्हारा कोई भी फैसला करने का? बैठो इधर मेरे पास। है आपको सारे फैसले करने का। पर ग्रैनी ऐसे कैसे? मैंने इसे देखा भी नहीं है और वो लोग मुझे अंगूठी भी मुझे पहना गए। उंगली में मौजूद व्हाइट गोल्ड की रिंग देखते कहा। आधी बची कॉफी का कप भी टेबल पर रखा था। वो परेशान थी। जिस शख्स वो जानती तक नहीं, इसके साथ सारी जिंदगी गुजारना। लड़का अच्छा है मरियम, तुम्हें खुश रखेगा, और मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं बस तुम्हारे फर्ज से सबकदोश होना चाहती हूँ। अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो तुम जो करो मर्जी है तुम्हारी। इसके मुस्तकबिल की फिक्र थी। ग्रैनी आप बहुत चालाक हैं। वैसे फ़ौरी इनके साथ लगी थी। तुम चाहो तो तस्वीर देख सकती हो। तुम्हें पसंद आएगा। वो शरीफ है, अच्छा भी है, तुम्हें खुश भी रखेगा। वैसे याद आया, तुम वो चमक छल्लो क्यों बन के आई थी? इसका हुलिया याद आते इसके बालों में प्यार से हाथ फेरते पूछा। हाँ, तो इनको कौन सा फ़र्क पड़ा? फुल पेंडू बन के आई थी, फिर भी पसंद आ गई मैं। हाथ हाथ बचाते कहा। तेल कहाँ से लिया था तुमने? वो हैरान थी। वो तेल काम वाली भूल गई थी। तेल? यक! इतनी गंदी स्मेल थी, फिर भी वो बर्दाश्त कर गए। हँसे कहा, जबकि वो महज़ सर हिला के रह गईं, जिसका कुछ नहीं हो सकता था। वो जब से वापस आई थीं, अजीब कशमकश का शिकार थीं। ये तुम्हारी चॉइस है? वो तस्वीर दिखाते सदमे में थी, जो वहाँ के इसके बेतहाशा इसरार पर गई थी और अंगूठी पहनाकर रस्म भी कराई थी। जबकि लड़की को देख सारे अरमानों पर पानी सा फिर गया था। ये कौन है? आप कहाँ गई थीं? आँखें हैरत से फटने के करीब हुईं। वो इसके रूम में ड्रेसर के करीब खड़ी थी, जो पुलिस यूनिफॉर्म पहने खुद पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। क्लोज करने से पता चला वही थी। ओह माय गॉड! ये लड़की कोई काम जो सीधा करे। मम्मा आपको पसंद नहीं आई क्या? वो यकदम परेशान हुआ। क्या कहूँ मैं अब तुम्हें? वो शर्मीली सी है, दुबली-पतली भी काफ़ी है। इस टाइप की लड़की मुझे कुछ सूटेबल नहीं लग रही तुम्हारे साथ। हमेशा कोई कॉन्फिडेंट वेल एजुकेटेड लड़की चाहिए थी मुझे, हमारी सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती। तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आई। ये नमूना पीस ही आना था। इनको अब अपना फैसला सही नहीं लग रहा था। दुबली से क्या मुराद? क्या हमने रेसलिंग करनी है? ये मंतक अजीब ही लगी। और रही बात तालीम की, तो मैं कम्युनिकेशन में मास्टर्स है। इसका वो एजुकेटेड है, कॉन्फिडेंट छोड़े, वो ओवर कॉन्फिडेंट है। लेकिन क्या आपको स्टेटस इशू है? बताएं। जानना चाहा, क्योंकि ये ही वजह इसे लगी थी। नहीं नहीं, पर एटलीस्ट हमारी सोसाइटी में मूव करने के काबिल तो हो। वो ये तो बिल्कुल देसी टिपिकल किस्म की है। हर खदशा निकाल दें, मुझे वो पसंद है। पर मैं लेट हूँ, अभी आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ। इसका कॉन्फिडेंस लेवल फिर कभी चेक करवाऊंगा। इसकी ज़ुबान की जोहर देखेंगी तो कानों को हाथ लगाएंगी। दिल में सोचा था। ये देखें मोबाइल की स्क्रीन सामने की, जहाँ इसकी कुछ वानिया के निकाह वाली पिक्चर थी। ये वो है? वो गौर कर रही थी। ऑफ कोर्स, बड़ी चालाक है। वो चाहती थी आप इसे नापसंद करें, इसीलिए ये हरकत की इसने। इसकी साइकी समझ चुका था वो। फिर तो तेज तराज होगी। मुझे तुम्हारी खाला की बेटी पसंद थी तुम्हारे लिए। नया खदशा लाहक हुआ। चलो जी, अब प्लीज खदशात निकाल दें और इसे अपनी बहू की नज़र से देखें, अच्छी लगेगी। पता नहीं, मुझे तो जज्बाती फैसला लग रहा है। इसके जाने के बाद वो खुद से बुड़बुड़ाई।
नाश्ता करने के बाद वो कुछ टाइम गार्डन में जूता उतारे नंगे पाँव चल रही थी। मौसम बदल रहा था, पुरसकून सी फ़ज़ा रूह को सुकून दे रही थी। ये 8 बजे कौन-सी कैट वॉक कर रही हो यूँ ही नहीं जाना? वानिया ने इसके साथ हम कदम होते कहा। मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ। नोट कैट वॉक ठंडी घास से सुकून मिलती है। सुकून मिल रहा था। वानिया की बेसाख्ता नज़र इसके पाँव पर ठहरी थी। इसके सुर्ख और सफ़ेद पाँव सब घास पर इस कदर खूबसूरत लग रहे थे कि इसे हसरत सी हुई थी। आपकी शादी होगी, आप चली जाओगी। आपको पता है मैं आपको मिस करूँगी। वो अफ़सरदा हुई। मैं भी, वहाँ अपने बेबी को करूँगी। होश में आते इसे हाथ लगाया। लम्ज़ आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओ, मुझे ज़रूरी बात करनी है तुमसे। सदफ ने इसे अपनी बात से मतवजह किया। जबकि वानिया इसके साथ तासुरात इस बात पर देखना चाहती थी तो वहीं रुक गई। जी मम्मा, पर क्यों? आज तो क्विज है मेरा फाइनल में, इसके नंबर शामिल होने हैं। अच्छा चली जाओ, पर बाकी दिन अब तुम घर से बाहर कदम नहीं रख रही। तो वैसे मैं तो चाह रही थी तुम आज भी ना जाओ। दिल अजीब सा हो रहा है। वो वानिया की शादी की तैयारियां अकेले करते थकावट का भी शिकार थी। मम्मा आप अभी इसे बताएं, वो जहन तैयार कर ले, वानिया ने करीब होते कहा। बात की तमहीद बांधी। कल से तुम माइयों बैठोगी। लम्ज़ वानिया के साथ तुम्हारी रुखसती भी है। इनके लिए ये कोई भी मसला नहीं था। वो सरहद से पलटी। आप क्या कह रही हैं? इसकी समातों पर धमाका ही तो किया था। मेरी जान, रिसेप्शन है, तुम्हारा वजदान चाहता है तुम्हारी रुखसती भी हो जाए। अपनी धुन में वो तो इसे आगाह कर रही थी, पर इसे वही पुरसकून फिजा में अब घुटन महसूस हुई थी। हलक तर करते बोलने की कोशिश की। मम्मा रुखसती क्यों? अभी नहीं मम्मा, मुझे नहीं करनी। इसकी चंद पल की गुर्बत बर्दाश्त नहीं थी। कहाँ इस शख्स के साथ एक कमरे में रहना लम्ज़ सोचते ही कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ था। भाप उड़ाता चेहरा सुर्ख चेहरा फक पड़ रहा था, जबकि वानिया ने इसके बदलते रंग देखकर माथा पीटा था। लम्ज़ मेरी जान आराम से, क्या हो गया है? इसके आंसू देखे। आप मम, मुझे नहीं करनी। मम्मा अभी नहीं करनी, हिचकियाँ लेते कहा। इसका इतना बारिश रिएक्शन देख वो परेशान हो गई थी। इधर बैठो, इसे चेयर पर बिठाया। कोई वजह? वो बुरा लगता है? नो। नफी में सर हिलाया, गर्दन हिलाई। फिर पता नहीं कैसे बताती, वो इसकी शिद्दतों से खौफजदा है। सीरियसली इतनी छोटी बात पर रोते नहीं है। वानिया को सच में तप चढ़ी थी। देखो मेरी जान, कभी तो रुखसती होनी थी ना, फिर अब हो जाए तो मसला क्या है? नो अभी नहीं करनी मम्मा, आप समझे ना। इनकी गोद में चेयर से उठते, घुटनों के बल बैठते सर रखा। क्या नहीं करनी? फिर से कहो। इसकी भारी आवाज से सांस बंद होती महसूस हुई। वो तो कल रात के बाद इसका सामना ही नहीं करना चाहती थी। लम ने सर ही नहीं उठाया। मैं बात कर रही हूं ना, समझा दूंगी। सदफ ने से बात रखा, जो ब्लैक ट्राउजर और टी शर्ट में था। वैसे भाई आप इसे मारते हैं क्या, जो इसने रोना डाला है? वो झुंझलाई थी। पूछ लेना इससे कितना मारता हूँ और किस चीज से। मीठा सा तंज था, जबकि इसकी बात सुनते शर्म से सुर्ख पड़ते जोर से आंखें मीची थी। इसकी आवाज ना महसूस करते सर उठाया था। वो जा चुका था। नाराज हो सदफ ने आंसू साफ करते पूछा। आपसे नहीं हो सकती मम्मा, खुद तो इस शराब का शिकार थी, पर इनको मुतमईन किया। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जो भी परेशानी है बताओ मुझे। इसके माथे पर बोसा दिया। आपका बेटा मेरी परेशानी है। सोचते वो यूनिवर्सिटी की तैयारी और इसका सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। वो ड्राइव कर रहा था, पर वो सोचों में मुब्तला थी। ठीक 4 दिन बाद रुखसती, ये सोच ही दिमागी मफलूज कर रही थी। अगर आज इम्पोर्टेंट लेक्चर ना होता तो किसी तौर पर इसका सामना नहीं करना चाहती थी। जब इसकी आवाज़ ने सोचों का इर्तकाज तोड़ा। आज हम शॉपिंग पे जाएंगे। मैं चाहता हूँ हमारी हर चीज़ परफेक्ट हो। विंड स्क्रीन पर तवज्जो मरकूज करते ही कहा। इसकी बात सुनते वो सीट पर बैठी तजब तजबज़ का शिकार हो रही थी। जिस टॉपिक से बचना चाह रही थी वो शुरुआत कर चुका था। मैं चाहता हूँ तुम पूरी तरह से इस दिन खुद को मेरे लिए सजाओ। तुम्हारा श्रृंगार, मेहंदी, चूड़ियाँ, हैवी ब्राइडल ड्रेस। तुम्हें पता है मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद, पर तुम्हें इन सब में देखना चाहता हूँ, मेरे रूम में, सिर्फ मेरे लिए। इस पर एक नज़र डाली, जो नज़रें झुकाए उंगलियां मसल मरोड़ रही थी। उसको तकलीफ नहीं दिया करो। स्टेयरिंग से हाथ हटाकर इसकी गोद में धरे बर्फ पड़ते हाथ पर अपना गर्म हाथ रखा था।
اس کے سلگتے لمس کی تپش اور اس کی باتوں سے ہتھیلیاں غیر قلود ہو رہی تھیں۔ بس کرے، مزید بولنے کے لیے اس کے لب دیکھ وہ بات جلدی سے کاٹ چکی تھی۔ وجدان اس کی فطری جھجک دیکھ چپ ہوا، اور وہ اسیر تھا اس کی حیا سے جھکی نظروں کا، اپنے ذکر سے اس کے چہرے کے بدلتے خوشنما رنگوں کا۔ گاڑی روکتے اس کو نظروں میں اتارا تھا۔ سنو، اب سے ٹھیک 4 دن بعد بات ہوگی، ہماری خود کو تیار کر لینا، میری ہونے کے لیے، تب کے لیے اپنا خیال رکھنا، صرف میرے لیے۔ اس کے ماتھے پر لب جمائے تھے اور خود میں اس کی خوشبو اتارتے سکون محسوس کیا تھا۔ وہ کافی دیر اسی پوزیشن میں رہا تھا، بے ساختہ اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ دل دھڑکا تھا اس کے اس طرح کے اظہار پر، جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے۔ عجیب سی کیفیت تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ خوش ہے، ناراض ہے یا پریشان ہے، جھجک رہی یا قبول نہیں کر پا رہی۔ یہ سب اس کی سوچ سے باہر تھا۔ آج میں یونیورسٹی نہیں آ رہا، ضروری کام ہے، اس لیے فری ہونے سے پہلے ہی مجھے کال کر دینا، اوکے؟ ہے کیا ہوا؟ یہی کیا ہوا؟ اس کی گرے آنکھوں کے سرخ ڈورے دیکھتے فکر لاحق ہوئی تھی۔ تب یہ ٹھیک ہے؟ اسے اترتا نہ دیکھ دوبارہ فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے وجدان، عجیب کیفیت تھی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ مجھے نہیں پتا۔ میں ابھی مزید بولنے سے پہلے وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی جما چکا تھا۔ شش، تمہیں کچھ جو تم کہنا چاہ رہی ہو مجھے وہ نہیں سننا۔ اس کے چہرے پر جھکتے اس کے بال بائیں گال پر ذرا اسے نظر آتے گڑے کو نرمی سے چھوا تھا۔ وہ خود میں سمٹی تھی۔ مجھے نہیں سننا، میری بات نہیں سننی، صرف اپنی مرضی۔ گاڑی سے نکلتے خود ہی بڑبڑائی، بلا وجہ غصہ آیا تھا۔ وائٹ جینز پر بلو چیک والی شرٹ کے بازو کونے تک موڑے تھے۔ وہ گاڑی سے نکلا تھا، ہونٹوں پر محض مسکراہٹ لیے اسے آج سرپرائز کرنا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم دیکھ لو۔ مریم، تم سے کوئی ملنے آیا ہے؟ مجھ سے؟ وہ جو فائل لے کر اندر آفس جا رہی تھی پلٹی۔ مجھ سے کون؟ پتہ نہیں، بس یہ کہا کہ آپ کا جاننے والا ہے۔ کندھے اچکائے۔ اچھا، میرے جاننے والا ہے؟ میں یہ فائل سر کو دے آؤں، پھر ملتی ہوں۔ اوکے سر، یہ اس میں سارے ایویڈنس ہیں اس کمپنی کے، یہ چیک آؤٹ کر لیں، اور ویڈیو بھی ایڈٹ کر دی ہے، پھر بتا دیں کیا کرنا ہے۔ سر، وہ گلاسز ٹھیک کرتے وہ رکی۔ مریم، آپ یہ چھوڑیں، ادھر آئیں۔ اس کے تیکھے نقوش پر نظر گاڑے کہا، ایکسکیوز می۔ وہ جو فائل ہینڈ اوور کر رہی تھی یکدم اس کی نظروں سے ٹھڑکی، جو اپنی ریوالونگ چیئر چھوڑے پاس آیا۔ یو لک ڈیم gorgeous in green. You look damn gorgeous in green shirt, perfect height, perfect figure. اگر آپ چاہیں تو آپ کو اس فیلڈ میں بہتر مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اس کے کندھے سے اپنا کندھا ٹکراتے وجود پر غور کرتے اس کے روبرو ہوا تھا۔ یہ چیک کر لیجئے گا، مجھے جانا ہے۔ ماتھے پر نمودار پسینہ صاف کرتے شیشے کے ٹرانسپیرنٹ ڈور کی طرف بڑھی تھی۔ آج پہلی دفعہ بغیر دوپٹے کے اپنے کپڑوں سے نفرت محسوس ہوئی تھی، اور یہ سامنے موجود شخص زہر سے بھی برا لگتا تھا۔ کہاں آپ سنتی نہیں؟ ایک تو اس دن بھی اس شخص کو آپ نے مجھ پر فوقیت دی۔ یہ نیوز چینل میں 50% میرا ہے، سمجھ رہی ہیں نا میرا مطلب؟ اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ خاموشی میں تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ اس تھپڑ کو بھی 50% میں شامل کر لینا، بلڈی ایڈیٹ۔ میں یہاں تمہارے انڈر نہیں کام کرتی، اس چینل کے HOD سے بات کروں گی۔ اب تک میں چپ تھی، پر اب تم دیکھنا مجھے ہراس کرنے کا انجام۔ ہمت کرتے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑوایا تھا۔ اسے سخت نظروں سے دیکھتے وہ خود کو کافی حد تک مضبوط ثابت کر رہی تھی۔ تم منہ پر ہاتھ رکھے وہ دھاڑا تھا۔ تو بچ اب مجھ سے کمینی، تیری بدنامی نہ کی تو میرا نام معراج ذوالفقار نہیں۔ دروازے تک پہنچتے اسے گرفت میں لے چکا تھا وہ۔ لیو مائی ہینڈ جنگلی، ہیلپ می۔ جانتی تھی اس کا آفس قدرے سائٹ پر ہے اور ساؤنڈ پروف بھی تھا۔ نو، کوئی نہیں آئے گا۔ سرتا پیر ہوس سے دیکھا، اس کی شرٹ تک ہاتھ لے کر جاتا جب کوئی دھاڑ سے دروازہ کھولتے اندر آیا۔ ہمت کیسے ہی تمہاری؟ ہاں بول۔ اس کا ہاتھ مروڑا تھا۔ یہ در پہ
पे दर पे थप्पड़ मार रहा था। किसी सूरत गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो इसके इंतजार से तंग आकर इस तरफ आया और सामने का मंजर इसे शदीद गुस्सा दिला रहा था। बमुश्किल इंतजामिया ने छुड़वाया। क्या जरूरत थी तमाशा क्रिएट करने की? बगैर इसके सुने बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्से तो वो इसे लिफ्ट की तरफ खींचे ले जा रहा था। लीव माई हैंड, हिम्मत कैसे ही तुम्हारी? जाहिल, छोड़ो मुझे। शट अप, यू शट अप, पीछे ही पड़ गए हो। छोड़ो मुझे। लिफ्ट का बटन प्रेस करते वो जो बाहर निकलने वाली थी हाथ पकड़कर खींचा। आइंदा मुझे जीन्स शर्ट में नजर ना आओ, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगा ना, याद रखोगी। बाजू जोर से कमर के पीछे मरोड़ी थी। बेसाख्ता इसकी चीख निकली। मेरा हाथ छोड़ो मुराद, तुम्हें पता है तुम नहाए ढीठ और बदतमीज हो। इसके कान के पास घुराया। आई आई सेड लीव माई हैंड, यू हर्टिंग मी। मेरा हाथ छोड़ो। इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो चाह के भी नहीं छुड़वा पा रही थी। मुराद भींजे जबड़ों से गुस्सा जब्त कर रहा था। इसकी गर्म सांसें गर्दन पर महसूस होते नफरत हो रही थी। तुम हो कौन? हाँ, कौन हो बताओ? इसकी गिरफ्त में दर्द से कराहते कहा था। योर फ्यूचर हस्बैंड, जस्ट रिमेंबर दिस। इसके कान के पास से सरगोशी की। वट आर यू इन योर सेंस? व्हाट आर यू इन योर सेंस? वो सदमे में थी। यस आई एम, ये रिंग हमारे एंगेजमेंट का सबूत है। इसके हाथ की अंगूठी दिखाए। वो तुम, मतलब मैं अभी इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ रही हूँ मुराद। अंगूठी खींच के उतारते इसके हाथ की हथेली पर रखी। आइंदा मेरे रास्ते में नहीं आना, वरना हर लफ्ज चबाते उंगली से वाजिया तनबीह की। इसकी बात पर बाजू से खींचते लिफ्ट के दरवाजे के साथ लगाया था। वरना क्या? क्या करोगी बताओ, क्या करोगी? अगर इसे खुद से जुदा किया तो तुम हशर देखना। जबरदस्ती इसकी उंगली में दोबारा पहनाई। मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते तुम, दरिंदे इंसान। दांत पीसते दोबारा उतार रही थी जब इसकी बात से रुकी। तुम जैसी लड़की जो नुमाइश करना जानती है, अपने बॉस के ऑफिस में तनहा जाती है, तुम्हारा हुलिया देख तुम्हें जरा शर्मिंदगी नहीं होती? आज हुए वाक़े ने तुम जैसी बददिमाग लड़की पर कोई असर नहीं छोड़ा। मुझे इस वक्त दरिंदा कहना तुम्हें कितना महंगा पड़ सकता है, अंदाजा है तुम्हें? लास्ट फ्लोर पर रुकती लिफ्ट का बटन दोबारा प्रेस किया था। अपना चेहरा इसके करीब तरीन किया। इसकी गिरफ्त कमर पर महसूस हुई। इसके लहजे में तमस्खर, अपनी जात की तजलील और इसकी सिलकती सांसों का लम्स चेहरे पर महसूस हुआ। इसके होंठ अपने चेहरे पर महसूस करते सही मानों में वो बुरा लगा था। इसके सीने पे हाथ रखते परे धकेला। मेरा करैक्टर बताओगे तुम? खुद को देखा, कभी देखा? यू नो वट मुराद, तुम में और इसमें कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा मुझे। वो भी दरिंदा था और तुम भी। मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ से वो सख्ते में थी। वो हाथ देख रहा था कभी इसे। लुक मरियम, लिसन, आई एम। होश की दुनिया में वापस आया था। किस हक से मुझ पर हाथ उठाया तुमने? लगातार बहते आंसुओं से कहा। खुद की तजलील, नफरत, गुस्से की हद से हिद्दत से चेहरा सुर्ख कर चुकी थी वो। मरियम, मेरा मकसद सिर्फ तुम है। शट अप, जस्ट शट अप। दूर रहो मुझसे, जस्ट कीप डिस्टेंस। शक्ल नहीं दिखाना मुझे अपनी। सेकंड फ्लोर पर रुकते वो रोते तेजी से बाहर निकली। डैम इट, जोर से हाथ दरवाजे पर मारा था। शदीद नाराज होने के बावजूद यूनी के पार्किंग एरिया में वो इसके वेट में थी। आप आ रहे हो या नहीं? मैं थक गई हूँ। एंग्री इमोजी के साथ टेक्स्ट सेंड किया। फोन तो वो इसे किसी सूरत नहीं करना चाहती थी, जबकि वो जो ड्राइव कर रहा था यकदम इसका टेक्स्ट पढ़ते बेसाख्ता मुस्कुराया था। वो गुस्सा थी अभी भी। सिर्फ 10 मिनट। सेंडिंग ऑप्शन क्लिक किया। अभी वो मुतवज्जा था कि फोन रिंग हुआ। नंबर देखकर माथे पर अनगिनत बल और दिमाग की नसें फूली थी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर इस बार कोई कुत्तापन करने की कोशिश की तो शदीद तैश में वो गाड़ी रिवर्स कर चुका था, ये सोचे बगैर कि वो रगजान इसके इंतजार में है। वो शॉल दुरुस्त करते टहल रही थी। लम, तुम गई नहीं अभी तक? इज़ा ने पूछा। वो तो कब से बाहर आ चुकी थी। हाँ, वो बस वजदान का वेट कर रही हूँ। दांत पीसे। जो 10 मिनट का बोलकर 20 मिनट कर चुका था। अच्छा, आ जाओ, मैं ड्रॉप कर दूँ अगर मुनासिब लगे तो। नहीं, तुम जाओ, मैं वजदान के साथ ही जाऊंगी। अच्छा जी, जैसे तुम्हारी मर्जी। हंसते वो चली गई। एक्सक्यूज मी जी। इज़ा अपने पीछे किसी शख्स की आवाज़ से पलटी।
वो जो आपसे बात कर रही थी, इसे कहें कि वजदान साहब ने इन्हें लेने भेजा। वो किसी ज़रूरी काम की वजह से आ नहीं पाए तो चेहरे के तैसुरात छुपाते कहा, "लम तुम्हें लेने आ गए हैं वजदान भाई, शायद खुद नहीं आ पाए।" वो नहीं आए, वो हैरत में थी और बाहर कदम बढ़ाए। चाबी गार्ड को देते वह भागने वाले अंदाज में गार्डन अबूर करते लॉन्ज में दाखिल हुआ था। "वानी, वानी, 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 वानिया कहाँ हो?" तकरीबन चिल्लाते इसका नाम पुकारा था। "क्या हुआ वजदान?" सदफ की तेज़ आवाज़ों से रूम से निकली। "मोम वानिया कहाँ है बताएँ?" वो परेशानी से बोला। "जी भाई क्यों ऐसे बुला रहे हैं? खैरियत?" आँखें मसलती लॉन्ज में आई। "ठीक हो तुम?" हाथ बात करते फौरी इसे सीने से लगाया था। "क्या हो गया?" "खैरियत भाई मैं ठीक हूँ।" वह हैरान हुई इसकी परेशान बात और अमल से। "तुम घर से बाहर गई थी आज?" "जी भाई 12 बजे तहा के साथ डिनर के लिए गई थी। इसके बाद 2 घंटे से सोई थी। अभी आपकी आवाज़ों से कुछ देर पहले जागी हूँ। आप क्यों पूछ रहे हैं?" "नहीं बस वैसे ही माथा मसला था।" "वजदान लम्ब कहाँ है? इसे नहीं लेके आए तुम?" सदर ने घड़ी पर नज़र डाली। यहाँ 4 बज के 15 मिनट थे क्योंकि इसकी लास्ट क्लास 3:30 बजे ऑफ थी। लम्ब झटके से इसके ज़िक्र से वो सोफे की पुष्ट से टेक लगाए रिलैक्स हुआ था, होश में आया। टूटते बिखरते आंसुओं पर बंद बांधते खुद को संभालते बमुश्किल बैग से एक्स्ट्रा चाबी से दरवाजा खोला था। दुआ की थी वो लॉन्ज में ना हो। वो इस पोजीशन में हरगिज नहीं थी कि इसका सामना करती। वो इस हालत में नहीं थी कि वजाहत देती। सच शुक्र किया वो नमाज पढ़ रही थी। रूम का दरवाज़ा बंद करते वो बेड पर बैठे कब से ज़ब्त किए आंसू बहाना शुरू हो चुकी थी, जो अब सिसकियों में बदल चुके थे। 14 साल की उम्र में इसके बाप का इंतकाल हार्ट अटैक की वजह से हो गया था। माँ बाप की जुदाई में चंद माह के बाद ये यहाँ फ़ानी थे में इसे तन्हा छोड़ गई थी। तब जब इसे ज़िंदगी के मोड़ पर बाकायदा रहनुमाई की ज़रूरत थी, कोई नहीं था। इसके पास ग्रैनी, बहू और बेटे के गम में निढाल थी। वो तो इसी सदमे से गुज़र रही थी, लेकिन जब तक ग्रैनी सँभली वो बहुत तल्ख़ हो चुकी थी। इस सब का फ़ायदा उठाते जब इसके मोहल्ले के किसी दरमियानी उम्र के आदमी ने इसे हरासा करने की कोशिश की। वो कम उम्र बच्ची सहम चुकी थी। खुद खौफ महसूस हुआ। इसकी शिकायत करने पर इसे ही बुरे होने का निशाना बनाया, सिर्फ़ इसलिए कि इसका बाप नहीं ज़िंदा था, माँ नहीं ज़िंदा थी। वो बुरी थी, जो इसे डिफेंड नहीं कर सकते थे। ग्रैनी को इस दिन पहली दफ़ा एहसास हुआ और वो अपने गम में इसे भूल चुकी है। खुद से मुतनफ़र होकर बहुत दूर हो चुकी है। मर्द-ज़ात से नफ़रत बेइंतहा हो चुकी थी। तब से हर वो काम किया जिससे वो इसका मुकाबला कर सके। कपड़े, तालीम, जॉब हर चीज़ ताकि खुद पर को पुरएतमाद और मज़बूत साबित कर सके। मगर थी तो लड़की ना, वो भी कमज़ोर थी। हर चीज़ में सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी। हाँ, एक फ़र्क ज़रूर था। ग्रैनी की बात काफ़ी हद तक मानना वो लाज़िम समझती, मगर कुछ मामलों में वो इंतहा से ज़्यादा ज़िद्दी और तल्ख़ हो चुकी थी। इसको जॉब, इसके कपड़े हमेशा से वो इन बातों का निशाना बनती आई थी। हम किसी पर तनकीद करते ये देखते हैं कि आप की तनकीद का अंदाज़ इस बंदे की इस्लाह कर रहा है या तंज के वार चला रहा है। नहीं, क्योंकि हम सिर्फ़ खुद को दूध का धुला और से ही समझते हैं, तो इसे निशाना बनाना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। किसी की हज़ार अच्छाइयों पर भी हमें इसका ऐब इन सब अच्छाइयों को पस-पुश्त में डालने के लिए काफ़ी है। वो खुद को मज़बूत ज़ाहिर करती थी, जानती थी अगर वो ये ना कर सकी तो दुनिया के दरिंदे इसे रौंद कर गुज़र जाएँगे। सबको लगता है मुझे किसी की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह जी पड़ता है, बहुत पड़ता है। कोई सुकून से क्यों नहीं रहने देता। मैं तंग आ गई हूँ। हाँ, ये जॉब मैं इसलिए कहती हूँ, लोगों को क्या तकलीफ़। मैं जानती हूँ अगर मैं तल्ख़ लहज़े की बजाय इन मर्दों से मीठा लहज़ा इस्तेमाल करूँ तो यही मुझे नोचने में वक़्त ना लगाएँ। नफ़रत हो रही मुझे तुमसे मुराद बेशुमार नफ़रत। अपना चेहरा और हाथ रगड़ा था। यहाँ दानिस्ता तौर पर अभी भी इसके लम्स की रमक महसूस हो रही थी। आज अरसे बाद ज़ब्त के बावजूद इस शख्स की बातों और हरकत ने इसे फिर से अपने सिमटे हुए खोल से बाहर निकाला था। ऐसा नहीं था इसे आज हुए मामले से फ़र्क नहीं पड़ा था। हर बार की तरह खौफ़ज़दा हुई थी। जाने कितनी बार वो इस मोड़ से अकेली गुज़री थी। किसी से भी शेयर ना करते वो खुद को तोड़ते-जोड़ते सँभली थी।
مریم تم آ گئی ہو؟ گرینی کی فکر مند تھی آواز بند دروازے کے پار سنی۔ جی گرینی آ گئی ہوں، سسکیاں دباتے فوری آنسو صاف کیے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ نہیں بالکل ٹھیک نہیں ہوں گرینی، بالکل بھی، بہت بری ہوں، میں کریکٹر لیس ہوں، میں گرینی انتہائی بری ہوں، انتہائی بری، جس کا جب دل چاہتا ہے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ روتے خود سے سرگوشی کر رہی تھی۔ مریم میری جان دروازہ کھولو، تم ٹھیک نہیں ہو۔ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ ان کا دل پریشان تھا، وہ کبھی ایسا نہیں کرتی تھی، جب کرتی تھی اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہی ہوتی تھی۔ آنسو صاف کرتے وہ بیڈ سے اٹھی تھی، وہ جانتی تھی وہ نہیں جائیں گی۔ کیا ہوا مریم، تم روئی ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ ادھر دیکھو۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس کا بکھرا سا روپ اور چشمے سے آزاد سرخ آنکھیں دیکھ بے ساختہ اسے سینے سے لگاتے پریشان ہوئی تھی۔ گرینی، وہ ضبط کے بندھن کھو چکی تھی۔ گرینی کیا میں بہت بری ہوں؟ بتائیں، روتے وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں میری جان، کس نے کہا یہ سب تم سے؟ وہ اس کے بکھرے بال درست کرتے بولی۔ مریم کیا سوچ رہی ہو؟ وہ پریشان ہو جاتی تھی، وہ کوئی بھی دل کی بات کبھی بھی ان سے نہیں کہتی تھی، اور یہ بھی جانتی تھی اندر ہی اندر سہتی تھی۔ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں، میرا رشتہ اس مراد سے طے کر دیا۔ ان کی گود میں سر رکھتے ہر بار کی طرح اپنا غم چھپا چکی تھی، خود پر قابو پا چکی تھی۔ اب اس کے لہجے میں کوئی کسی قسم کا احساس نہیں تھا۔ میں نے تمہیں کیا کہا تو تھا، تصویر دیکھ لو گرینی، مجھے اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ جمعہ 4 دن ہوئے نہیں اور آپ نے اس سے میرا رشتہ طے کر دیا، حد درجہ بگڑے لہجے میں کہا۔ مریم شادی کبھی تو کرنی تھی نا؟ پھر وہ قدرے حیران تھی۔ اگر اس کو خود سے جدا کیا نا تو تم حشر دیکھنا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ میں کل پھر ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیں، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور انشاءاللہ کل اس کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔